The process of learning, unlearning, and relearning can change the world like no other. We welcome you to a new episode of our YouTube series about change making with Gurnoor Suri, a 16-year-old youth activist from New Delhi, India. Hi, everybody. I hope everybody is staying positive, testing negative, and also taking care of their mental and physical well being. Um, Today, I am beyond honored to have with me Miss Anju Verma. She's been a mentor and, of course, a social activist I've been really inspired from. Um, I can go on and on about her achievements and her amazing personality, but to be as concise as I can, Miss Anju Verma has worked as the founder and CEO of Buland Udan since October 8th, 2017. A TEDx speaker, she has acted as the recipient of various awards, including but not limited to UNV Award, I Volunteer Award, as well as the Hindu BL Young Changemaker Award, bestowed upon her by our former Prime Minister, Dr. Manmohan Singh. Ma'am, it's an honor to be with you. Yeah, thank you so much, Gurnoor, for inviting me. And seriously, आपके साथ इस इवेंट में रह के मतलब मुझसे ज्यादा भाग्यशाली और कौन होगा. Thank you so much. जो भी हमारे viewers है, I would just like to convey one thing. I have worked with Anju ma'am for good 1.5 to 2 years before the menstrual hygiene thing actually became a branch of Buland Udan. But uske pehle bhi I was working with her in an NGO as just a common member. And because I've seen her journey myself, I've seen her talk about her journey, I thought there is no other person I could contact for this series, especially than Anju Verma ma'am. I refer to as Anju ma'am usually. तो मैं उनको वही बुलाऊंगी with all due respect and passion and love for the work you do. आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है हम सबके लिए एंड फॉर एवरीबडी आउट देयर जो अपने आप को एक चेंज मेकर से आइडेंटिफाई करना चाहते हैं. एंड द होल रीजन बिहाइंड दिस इज एज अंजू मैम, she comes from a slightly unprivileged background, and despite coming from that background, उन्होंने जो आज किया है, we all could only dream of it. So it's just an inspirational, I think it's even beyond inspiration to be sitting, to be talking with Anju ma'am. And आज हम उनके बारे में सुनेंगे. We'll talk about learning, unlearning, and relearning processes. Ma'am, before we start with the main interview, if you could just talk a little about yourself, and then we'll proceed. Okay, so सबसे पहले तो गुरनूर आपने काफी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है मेरे बारे में, सो ज्यादा बताने की जरूरत भी नहीं है. बहुत अच्छे से इंट्रोड्यूस करवाया आपने. लेकिन मैं बताना चाहूंगी कि एक बुलंद उड़ान ऑर्गेनाइजेशन का आप लोगों ने नाम सुना होगा. उसके मैं एज अ हेड एक फाउंडर के तौर पे काम कर रही हूँ, जिसको लगभग 8 से 9 साल कंप्लीट हो चुके हैं काम करते हुए. और यदि गुरनूर की बात करें तो ये हमारे बहुत ही होनहार एक हीरो रह चुके हैं, और अभी भी इनके साथ बाय हार्ट हम लोग कनेक्टेड हैं, और जो कि कनेक्शन कभी टूट नहीं सकता है. चाहे वो कोई ठुकराए या ना ठुकराए, वो हम लोगों को पता है कि हम लोग कैसे कनेक्ट हुए थे. सीरियसली आज आपके साथ मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि आपका जो सेशन आज स्टार्ट हुआ है उसके बारे में, और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपके हर एक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए. Right. Thank you so much again. Ma'am, हम start करेंगे just with a concise insight into your background. आपने क्या देखा? What I believe, what I know, because I know you personally. I know कि आपने काफी देखा है sexism against the girl child. You've seen the lack of education, people engaging in child labor, poverty, negligence, apathy, all of that. So, as viewers, we want to understand what exactly was your background. आपने कहाँ से वो inspiration ली? So, मैं बताना चाहूंगी कि जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं एक हरियाणा में एक दौलतपुर नाम के विलेज से बिलोंग करती हूँ. और जैसे कि आप लगभग विलेज का नाम सुनने पर कोई भी सिटी का पर्सन या कोई भी हो, एक रूरल बैकग्राउंड सब लोगों के माइंड में सेट हो जाता है कि एक ऐसा एरिया जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है, वहाँ के लोगों की जो सोच है वो की नैरो माइंडेड है. बहुत सारी चीजें सामने आती है जो कि कहीं हद तक सही भी है.
क्योंकि सिटीज में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो चुका है, उनके माइंडसेट चेंज हो चुके हैं, वो लोग जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट कर रहे हैं, जबकि विलेज को लगता है कि जो भी चेंजेस आ रहे हैं वो सारे के सारे गलत है, जबकि हर चेंज गलत नहीं होता है, तो उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकते, उनके पास एक्सेप्टेंस की इतनी पावर नहीं हो पाती है। तो उसी बैकग्राउंड से मैं हूँ जहाँ के मेरे पेरेंट्स का भी कुछ ऐसे सी माइंडसेट था, क्योंकि एक इन्वायरमेंट आपको सिखाते हैं क्या करना है कैसे करना है। तो जैसे कि हम लोग बहुत बार उसका जिक्र कर चुके हैं कि सबसे बड़ा है रोग क्या कहेंगे लोग। सिर्फ एक लाइन आप लोगों को सुनने में छोटी सी लगती होगी, लेकिन इस लाइन से ना लड़कियों की जिंदगी स्टार्ट होती है और वहीं पे खत्म हो जाती है, इन विलेजेस। ओके, यही सुनते सुनते वो बड़ी होती है, बचपन बीतता है और बड़ी हो जाती है और मर भी जाती है। ठीक है, उसके बाद कुछ भी नहीं रहता, सिर्फ एक लाइन लाइन के चलिए। तो मैं मेरी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई मैं उस पे आती हूँ। मतलब व्हेन आई वाज 10 years old and I was studying in 5th standard in my village। सो गवर्नमेंट स्कूल था वो, उसके अंदर क्या था कि जैसे कि मेरा स्कूल का डे खत्म हुआ और मैं जैसे ही अपने घर वापस आई इवनिंग में, तो समर वेकेशंस हुए मेरे 1 month के। तो मैं बहुत ज्यादा हैप्पी थी, क्योंकि समर वेकेशंस किसको खुशी नहीं मिलती, इवन अब बच्चों को तो लॉकडाउन में 2 साल की आजादी मिल गई है स्कूल से। तो उसके बाद क्या है कि मैं जब घर आई तो मेरे दूर के रिलेटिव्स, पापा के दूर के रिलेटिव्स घर पे आए हुए थे, लेडीज थी वो। तो उन्होंने मुझसे बोला, मैं बहुत खुश थी, तो उन्होंने बोला कि क्या हो गया, मतलब इतनी खुश कैसे आ रही हो। मैंने कहा मेरे 1 महीने की छुट्टियां हो गई है। तो फिर वो कहती कि तुम 1 महीना मेरे साथ चलो, ठीक है, तुम्हारी छुट्टियां हो गई है, उसी दिन वापस रिटर्न होने वाली थी। मैं खुश तो हो गई, लेकिन मैंने सडनली आई टर्न बैक और मैंने मेरे पापा की तरफ देखा, क्योंकि पुरुष प्रधान समाज है, फैमिली के डिसीजंस तो पापा ही लेंगे। तो फिर उसके बाद में पापा ने ऐसे गर्दन हिला दी कि हाँ जा सकती हो। तो वो मेरे लिए एक प्लस पॉइंट था, और वो मेरे ना मेरा टर्निंग पॉइंट था मेरी जिंदगी का। ठीक है, यू टर्न था मेरा वहां से। तो उस टाइम क्या हुआ कि मैं खुश हो गई इतनी ज्यादा कि अरे वाह, मेरे से लकी कौन हो सकता है, मैं 30 days के लिए किसी के यहाँ एक लग्जरी लाइफ जीने वाली हूँ। ठीक है, क्योंकि वो एक कहावत है हरियाणा में कि दूसरों की थाली में घी ज्यादा दिखता है। ठीक है, कि दूसरों की थाली में जो लड्डू है ना उसका साइज बड़ा दिखता है आपको, तो सेम होता है, लेकिन आपको दिखता है, आपकी माइंडसेट ऐसा हो जाता है। तो मैंने सोचा कि 1 महीने के लिए वहां जाने वाले हैं, लग्जरी लाइफ मिलेगी बिल्कुल परफेक्टली अच्छे से, वो खुद पूछेंगे, बेड पे ही सारी चीजें सर्व करेंगे। मतलब एक बहुत अच्छे वाली फीलिंग के साथ गए थे, कुछ ज्यादा ही सोच लिया था मैंने। उसके बाद जैसे ही मैं पहुंची, इवनिंग का कुछ टाइमिंग था, थोड़ा 1-2 घंटे के लिए, ऐसा नहीं है, हालचाल पूछा था। और उसके बाद में उन्होंने चाय पानी वगैरह पूछा, और फिर जैसे हम लोग बातें वगैरह करते हुए रात को सो गए। मॉर्निंग में, क्योंकि मैं मेरे फैमिलीज में चाहे कैसे बैकग्राउंड क्यों ना हो, लेकिन व्हेन आई वाज 10 years old मेरी फैमिलीज का इतना बड़ा मेरे पास प्रेशर नहीं था कि हाउस होल्ड वर्क्स के लिए कि ये करो वो करो, ऐसा कुछ नहीं था, मुझे कोई प्रेशर नहीं था, बस मैं स्कूल का काम करती थी उस टाइम। ठीक है, तो वहां पे क्या हुआ, मॉर्निंग में 5 o'clock मुझे उठा लिया और बोला कि चाय बनाओ। मैंने बोला कि आई डोंट नो अबाउट चाय बनती कैसी है। तो उन्होंने बोला कि एक काम करो, हमारे साथ किचन में चलो, हम जैसे जैसे बोलेंगे कि इतना चाय पत्ती चीनी डालना है और हम तुझे सिखा देंगे, और वैसे भी आज हमारा लर्निंग डे है, तुम सीखोगे, हम तुम्हें सिखाएंगे सारा। तो वैसे भी फैमिली जब भी दूसरों के यहाँ भेजते हैं ना, तो बहुत सारी बातें समझा समझू के भेजते हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा वो कंसर्न रहते हैं ना अपने बच्चों की तरफ, कि जब भी कोई छोटा मोटा काम करने के लिए बोलते तो मना मत करना। ठीक है, थोड़ी बहुत हेल्प करवा देना, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, अच्छे से रहना, ये वो मतलब सामने मत बोलना, ऐसी वाली चीजें समझा देते हैं। तो मैंने बोला ठीक है, आज लर्निंग डे, हो सकता है इनकी रिवाज हो, ये इनका ट्रेडिशन हो ऐसा, आज के दिन काम करवाने का, हो सकता है मेरा फन डे, लग्जरी डे कल से स्टार्ट होने वाला हो सकता है। तो उस दिन क्या हुआ, मॉर्निंग के 5 o'clock से लेके और नाइट के 10 PM तक लगभग मेरा यही हाल रहा, घर के सारे छोटे मोटे काम मुझसे करवाए गए। सोने से पहले मुझसे पूछा कि क्या तुम सारा काम सीख गई हो। तो ऐसा होता है ना कि कुछ बोलने से पहले थोड़ा सोच लेना चाहिए, तो वो उस टाइम मेरा दिमाग चला, मैंने सोचा कि थोड़ा सोच लेते हैं। और जब मैंने सोचा ना, तो मैंने सोचा कि ऐसा बोल देती हूँ कि सीख लिया, क्योंकि ऐसा बोलूंगी कि नहीं सीखी तो हो सकता है कल लर्निंग डे फिर से स्टार्ट हो जाए, फिर से स्टार्ट हो जाए। तो मैंने सोचा कि आज कह देती हूँ कि हमें सीख लिया, कल से मेरा फंडे स्टार्ट, मेरा पीछे छूटेगा। मैं खुशी से
प्यारी सी स्माइल की, बड़ी सी, मेरे को सब आ गया, मेरे को बिल्कुल अच्छे से आ गया। तो नेक्स्ट डे क्या हुआ, मैं सो गई थी, आई स्लेप्ट, एंड उस नेक्स्ट डे मॉर्निंग में फिर से 5, क्योंकि विलेजेस में क्या होता है, गुरुद्वारे मंदिर में अनाउंसमेंट होती है कि 5 बज चुके हैं, उठ जाओ, अलार्म वगैरह नहीं होती। तो उन्होंने फिर से मुझे 5 बजे हाथ पकड़ के उठा दिया, मतलब मैं आंखों को मसल रही हूँ, अभी मेरी नींद खुली भी नहीं है अच्छे से। मैंने बोला अब क्या हो गया, तो उन्होंने बोला कि अब चाय बनाओ, कल चाय बनाने का टाइम हो गया है, और कल भी कल तुमने सीख तो लिया ही है काम, तो अब तुम खुद जाके किचन तुम्हें पता ही कहाँ है, चाय चीनी तुम्हें पता ही कहाँ है, जाके बनाओ चाय, ठीक है। तो मैं शॉक्ड हो गई कि हो क्या रहा है मेरे साथ, ये चल क्या रहा है, मतलब क्या लग्जरी लाइफ ये है, ठीक है। तो मुझे बिल्कुल 1% भी आइडिया नहीं था। तो उसके बाद क्या हुआ कि मतलब पूरा दिन, एक तो होता है कि आप साथ मिलके कोई काम कर रहे हो, दूसरी चीज होती है कि सब लोग आराम से बेड पे सोफे पे बैठे हुए हैं, ए इधर आ, ये काम करो, उधर आओ, वो काम करो। तो मतलब एक उंगली के इशारे पे एज अ सर्वेंट ट्रीट किया गया मुझे, ठीक है। ऐसे मेरे 20 डेज बीते, और उस टाइम मेरे साथ सेक्सुअल हरासमेंट होने का भी एक मेरे को चांसेस था, पूरा पूरा 100% चांसेस। मैंने कभी शेयर भी किया होगा उस चीज के बारे में, लेकिन मैं फिर से एक छोटी सी उसे शेयर कर देती हूँ, छोटी सी स्टोरी में, कि उस टाइम उन्हीं के एक 21 ईयर्स ओल्ड जो मेरे के रिश्ते में मेरे अंकल लगते हैं, तो उन्होंने मेरे को बोला कि तुम आज मेरे साथ ही रहना, रात को मेरे साथ सोना। तो उस टाइम मेरे को पता नहीं था, तो मैंने जब उनसे क्वेश्चन किया कि ऐसा क्यों, तो उन्होंने बोला कि कोई बात नहीं, तुम वैसे भी पूरा दिन थक जाती हो, तो आज कोई गेम खेलेंगे नाइट को, किसी को बताना मत। तो उस टाइम मुझे नहीं पता था किसी भी चीज के बारे में, सो मैं बहुत ज्यादा खुश भी हो गई थी एक बार के लिए। लेकिन आप लोगों को मैं बताना चाहूंगी कि फ्रॉम 4th स्टैंडर्ड मैंने मेरे हार्ट का नाम रख रखा है शिवम। तो मेरे शिवम ने मुझे वार्निंग दिया कि नहीं सोना है तुम्हें वहां पे, और अदरवाइज तुमने जिद करके तुम सोई तो मैं धड़कना छोड़ दूंगा, ठीक है। तो वो वार्निंग बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि धड़कना ही छोड़ दोगे तो करोगे क्या। राइट। तो उसके बाद मैंने सीरियसली उसको लिया, एंड देन मैं नहीं सोई वहां पे, और मैंने वो बात फैमिलीज में सबको बताई उनके यहाँ। तो उन्होंने काफी बड़ा ड्रामा क्रिएट किया, उनको मारपीट भी हुई है, उनको थप्पड़ वगैरह मारे, वो काफी रोए भी। तब देन आई रियलाइज कि मेरे साथ बहुत बड़ी कुछ घटना होने से बच गई, ठीक है। और शायद मेरा दिल मुझे नहीं बोलता, नहीं रोकता, तो शायद कल रात को मेरे साथ कुछ ऐसा हो जाता कि मैं या तो मर जाती या किसी को मुंह दिखाने के लायक ना बचती। देन 20 डेज मेरे बीतने के बाद मैं वापस अपने घर आई, क्योंकि मेरे पापा किसी काम से वहां गए थे, तो मैं जिद करके अपने घर वापस आ गई। आके मैंने मेरी फैमिली से शेयर किया, देन मेरी फैमिली से फोन पे बात करके बहुत डांटा उनको कि ये सब चीजें क्या है। देन मेरे को थोड़ा हौसला आया, और ऐसा होता है ना कि बच्चा है धीरे धीरे भूल जाता है चीजों को, तो मैं भूल गई। उसके बाद कुछ टाइम बाद मेरे साथ फिर से कुछ ऐसी, मतलब मेरे साथ इंसिडेंट नहीं हुआ था, बट मेरी क्लासमेट्स के कुछ गर्ल्स के साथ इंसिडेंट हुआ सेम, हाउस होल्ड वर्क का, लाइक चाइल्ड लेबर एक्सेट्रा। तो देन वो होता है ना कि गुरनूर आपकी खुद की उंगली पे कट लगाओ ना, देन यू कैन रियलाइज अदर पेन ओनली, राइट। ओके। जब आप खुद के उंगली पे चोट नहीं है ना, यू कांट रियलाइज कि पेन क्या होता है। आपको लगता है कि वो ड्रामा कर रहे हैं, ठीक राइट। है। तो वही चीज है, वो मेरे को रियलाइज हुई, देन मैंने उस चीज के लिए एक स्टैंड लिया, उनके पेरेंट्स को समझाने की कोशिश की। वो बहुत बड़ा लंबा प्रोसेस था। देन मतलब फाइनली मैं उस चीज में सक्सेसफुल हुई, उनके पेरेंट्स को, उनके बच्चों को समझाया। उस बच्चे फिर से स्कूल में रेगुलरली रहे, काफी अच्छे परसेंटेज, काफी अच्छा स्कोर करने लगे वो लोग क्लासरूम्स में, चाइल्ड लेबर से हट गए। मेरे विलेजेस में लगभग काफी केसेस मुझे मिले जो कि ऐसे थे, मतलब ड्रॉप आउट्स थे, इनडायरेक्टली स्कूल नहीं जाते थे, इनडायरेक्टली चाइल्ड लेबर में वो लोग फंसे हुए थे। तो ये सारा चीजें मेरा बेस था, मतलब ये वो टर्निंग पॉइंट था मेरा वहां का, मेरे रिलेटिव्स का। देन उसके बाद मैंने उस चीज को पॉजिटिवली लेके मतलब मैंने सीखा, मेरे को पता चला पेन क्या होता है, देन आई रियलाइज, और फिर मैंने उसके लिए काम करना स्टार्ट किया। सो ये मेरा बेस था। Of course. Thank you so Yeah. much for sharing with us, ma'am. I think it's a pleasure कि जो हमारे background होता है, that is what actually forms the whole building, the fundamental base. And Yeah. your experience was the fundamental base for you, and continues to be the fundamental base for you. To all the viewers, I'd like to point one very, very important thing. Like Pam mentioned, she's been through the pain of child labor. उनको काम करवाया गया when she was at her relative's house
and she's also went through very closely experienced something known as child sexual abuse. Somebody who's as old as the uncle, और वो I think अब से 10 साल के थे तब जब ये आप साथ हुआ. Imagine the impact on person. And I think being a person who's worked on the ground level too, मैंने मैम बहुत देखा है ये चीज कि बहुत लोग इन सब से गुजरने के बाद, and rightly so, people undergo depression, people undergo mental health phases, और वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं. There are suicides, there people, सबने बोला कि मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाती मैं. There people, इतना हमारे country में rape culture इतना prevalent है. People think it's the girl's mistake, it's the victim's mistake, which is so prevalent, which is why बहुत लोग रुक जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते हैं. But I think it's a big salute to you जो आप आगे बढ़े. And इसी चीज से एक बहुत important topic sprout होता है. That is, what exactly is the process of learning, unlearning and relearning. In Anju ma'am's case, जितना मुझे समझ आई आपकी बातों से and my experience with you working, for her the learning was कि लड़कियों को, and especially लड़कियों को घर का काम करना चाहिए. They should not engage with education, or they deserve a particular kind of treatment. उनके लिए relearning और learning का process ये था कि this is wrong, and I will move beyond this whole barricade कि मैं नहीं कर सकती. And that is what shapes her today. She is one of the most renowned social activists in India, and the reason behind that is because she could unlearn the whole principle of lack of education. कि education हमारा एक बहुत important, it's a passport to privilege. Education in its very concise manner. और जैसे मैम ने भी बोला, she's also given a lot of other girls the right. She's also made them realize that they have the right to education. I think I'm wrong, आप मुझे correct करेंगे मैम. बुलंद उड़ान founded by अंजू वर्मा मैम ने कम से कम 800 लोगों को स्कूल में पहुंचाया है. She has stopped several sexual harassment cases. तो ये सब कुछ उस अनलर्निंग का पार्ट कि जो विक्टिम्स होते हैं चाइल्ड लेबर के, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के, एनी काइंड ऑफ अब्यूज एट ऑल, उनके लिए प्रोसेस क्या रहता है अनलर्निंग का. हाउ डू दे अनलर्न व्हाट दे हैव बीन टॉट फॉर सेवरल इयर्स? Okay, so basically Gulnoor, we can see that कि जैसे आपने बोला अर्लियर कि जब भी उनके साथ कुछ इस टाइप का इशू होता है, ओके, सेक्सुअली हरासमेंट हो गया या किसी अलग, क्योंकि सेक्सुअल हरासमेंट एक ऐसी चीज है जो कि बहुत, जैसे आपने पहले भी बोला कि डिप्रेशन में चला जाता है बंदा. ओके, लड़कियां 95% तक लड़कियां उससे बाहर उभर कर नहीं आ पाती है. राइट. अटेम्प्ट टू सुसाइड, एंड उसके अलावा उनकी बचपन में ही फिर मैरिज के लिए इनका रिश्ता ढूंढ के उनकी मैरिज कर दी जाती है. ताकि हम लोग, और इवन एक चीज और सोसाइटी में देखने को मिलती है, इवन चाहे पेरेंट्स क्यों ना हो, सब लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागते हैं ओनली. पेरेंट्स इसीलिए अपनी लड़की की तुरंत शादी कर देना चाहते हैं ताकि इसकी शादी करके दूसरे फैमिलीज के पास भेज दें. उसके बाद इसके साथ जो भी हो फिर उसका नाम बर्बाद इनके ससुराल वालों को होगा, हमारा नहीं होगा. राइट. ठीक है, ये मतलब टोटली ये एक ऐसा कड़वा सच है जो कि कोई लड़की कोई अपने पेरेंट्स के बारे में किसी के बारे में भी नहीं सुनना चाहती है. ठीक है, सीरियसली अनलर्निंग की बात यदि की जाए कि वो कैसे अपने आप को सिखाते हैं दोबारा, कैसे वो ट्रैक पे आते हैं दोबारा, तो जैसे कि मेरी स्टोरी आप लोगों ने सुनी जिसमें से मैं 95% गर्ल्स की अलग बात की और 5% की मैं बात करूं, तो उस टाइम जब वो विक्टिम्स लड़की या कोई भी हो रहा होता है ना, तो उसको एक एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत होती है. सो वो सपोर्ट कोई भी हो सकता है, उनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, उनके फ्रेंड भी हो सकता है, या कुछ भी एनीथिंग ऐसी चीज हो सकती है. वो किसी से भी सीख सकता है, एक बर्ड से भी सीख सकता है, एक आंट से भी सीख सकता है, एनीथिंग, एग्जाम्पल कुछ भी हो सकता है, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग बोथ. ठीक है, उसके बाद यदि उनको सेल्फ मोटिवेशन मिले, उसके बाद यदि उनको कोई ऐसा सपोर्ट मिले एक्स्ट्रा, देन वो उसको रियलाइज करे कि तुम्हारी जिंदगी यहीं तक नहीं थी, तुम्हें और भी कुछ करना है. एंड
कहते हैं ना कि जब भी लड़की के साथ सेक्सुअल अब्यूज और किसी टाइप का ऐसा देखने को मिलता है, रेप केसेस वगैरह देखने को मिलते हैं, तो लड़की को जैसे कि हमारी सोसाइटी से उस तरीके से काट के फेंक दिया जाता है, जैसे एक पेड़ से टहनी को फेंक दिया जाए काट के, और उसके बाद वो मिट्टी में मिल जाता है, वो किसी काम का नहीं बचता है, वो टहनी वो सूख सूख के मिट्टी में मिल जाता है और किसी को फर्क नहीं पड़ता है, फिर से टहनी नहीं आ जाती है। और वैसे ही लड़कियों के साथ भी होता है, जब उनके साथ सेक्सुअली अब्यूज कर दिया जाए तो सोसाइटी इस तरीके से उनको काट के फेंक देती है जैसे उनको फर्क ही ना पड़ रहा हो। उसको एजुकेशन की तरफ नहीं बढ़ने दिया जाता है, उनको किसी भी चीज की तरफ नहीं बढ़ने दिया जाता है। तो अनलर्निंग और रीलर्निंग बहुत एक हम लोग बोलने में एक छोटा सा वर्ड है ये, लेकिन जब इसके पीछे की हम पूरी जर्नी देखें तो इसके पीछे के ऊपर सारा चीजें डिपेंडेंट है, हमारी पूरी कहीं ना कहीं इसको रिलेट कर पा रहा है। और ये अनलर्निंग, रीलर्निंग, लर्निंग, ये तीनों चीजें सुबह से लेके हम लोगों की सोने तक चलती रहती है, तीनों चीजें कंटिन्यू। ओके। और लर्निंग जैसे आपने बोला कि जो चीजें हम लोग अपनी फैमिलीज, अपने सोसाइटी, अपने बैकग्राउंड से देख के सीखते हैं वो चीज। ओके। रील लर्निंग, अनलर्निंग बहुत सारी चीजें होती है जिसको हम लोग सीख के पता चलता है कि गलत हो रहा है, और वो तभी होगा जब हम लोग एक अच्छे इन्वायरमेंट में उस चीज के प्रति सीखने के लिए हम लोगों को एक माइंड सेट होगा, हम लोगों की खुद के अंदर एक इच्छा शक्ति होगी, देन एक विल पावर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और सबसे पहले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज कि आप खुद के दोस्त बनो, आपको बाहर देखने की कोई जरूरत नहीं। आपको, हम लोगों ने खुद की आत्मा को तो मार रखा है और हम लोग ढूंढते फिरते हैं कि कोई दूसरा मिल जाए मुझे संभालने के लिए। गुरनूर, कैन यू मैनेज रियलाइज कि जब आप किसी डिप्रेशन में हो, मैं आपको 2 आवर 3 आवर 24 आवर भी मैं आपको मोटिवेशनल बातें करके समझाने की कोशिश करूं, आप नहीं मानेंगे। यदि आपने माइंडसेट बना रखा है कि मुझे नहीं मानना, आपने सोच लिया कि मेरे को मर्डर अटेम्प्ट करना है, मेरे को सुसाइड करना है, तो आप करेंगे, आप मेरी बात नहीं सुनेंगे। और यदि आपके दिल से, आपके खुद के दिल ने एक बात बोली कि नहीं गुरनूर, तुम्हारे पास बहुत जिंदगी है, जीना है, तो वो एक लाइन आपकी जिंदगी बदल देता है, आपका खुद का दोस्त। सो लर्निंग, अनलर्निंग और रीलर्निंग, सारा का सारा चीजें सबसे बेस्ट जो कि सिखा सकता है वो हमारा खुद का फ्रेंड है, जो हमारा खुद का दिल है। तो हम लोगों को सबसे पहले तो उसके साथ दोस्ती करनी पड़ेगी, तभी हम लोग रियलाइज कर सकते हैं कि तीनों चीजें है क्या एक्चुअली। और एक्सप्लेन करने चले तो इसमें बहुत टाइम लग सकता है, क्योंकि ये इतना इजी नहीं है इसको एक्सप्लेन करना। Definitely. Ma'am, like you mentioned, depression के बारे में, I would just like to talk to all my viewers over here as well, कि depression एक बहुत ही vast और बहुत complex psychological issue है। हम सिर्फ जो अंजुम मैम एंड आई, we both have people who worked on the ground, so जो हम बोल रहे हैं अपने experience से बोल रहे हैं, what we've learned throughout these years. However, because I've also worked with a psychologist, मेरा ये field भी, I want to pursue this in the future as well. जैसा आपने बोला, अपने आप से बात करना, self awareness होना, it is the first step towards any kind of psychological intervention. Nobody can change you until you are acceptable towards the fact कि change cannot come. Like we say, change is the only constant. So बहुत important है कि if anybody is going through, we are not psychological professionals over here, so but what we're speaking is out of our own experience, like ma'am mentioned. Ma'am, like also again, like you mentioned, I'll also talk about one case that I kind of witnessed through my own eyes. और एक case नहीं, there are multiple cases like that. मैम मानोगे नहीं, आप जो बोल रहे हो वो रूरल एरियाज के बारे में जनरली कंसेप्शन की वहां पे प्रोग्रेशन नहीं होता, वहां पे बड़ा ऑर्थोडॉक्स कल्चर है, जो टू अ सर्टेन एक्सटेंट इज आल्सो ट्रू। हाउएवर, इवन इन अर्बन एरियाज पीपल थिंक कि यहाँ पे कुछ नहीं होता है। आई हैव सीन थ्रू दिस थ्रू माय ओन आईज। विमेन, स्पेशली विमेन, दे आर टॉट फ्रॉम अ वेरी यंग एज कि आप चाहे कितना भी पढ़ लो, इन द एंड यू आर अ लाइबिलिटी, you will marry and you'll be somebody else's, like an object. और उसके बाद because वो कभी unlearn कर ही नहीं पाते हैं उस चीज को, they've learned something for so many years. I mean, until and unless, let's say अगर आपका minimum age अभी 18 years है,
for a woman to marry. Let's say till 18 years, a person is being constantly fed with the thought कि आपका conclusion सिर्फ marriage ही है, और वो अपने पूरी जिंदगी कुछ अनलर्न करती नहीं है. And then she has a daughter, and she is again propagating the same thing, और वो आगे चलता रहेगा. Hence, people like you, people who are change makers, हमको cycle को break करना है. This cycle of learning, this vicious cycle जो हम लोग orthodox को believe कर लेते हैं, which is a very, very crucial aspect of it. बहुत लोग ऐसे होते हैं जो आज तक they are going through domestic violence in their own homes, ma'am. Like you also witnessed yourself. You've seen people, बहुत cases आते हैं आपके पास कि मार रहे हैं या emotional abuse हो रहा है. Still, people are unable to get out of their homes. What is the reason behind that? The main reason is कि उनको बचपन से एक feed किया जाता है कि यही आपका है. This is right. This is all right. And they never unlearn it. And people like you, like Anjum ma'am, I'm a big fan of your work personally. आपने वो चीज unlearn करी. You've unlearned the fact कि as a girl, I can do what I want to do. I can be a CEO. I can be a founder. And I can rule the world, rule my own world. Which is a very, very crucial aspect. So thank you again for talking about that. हम एक और हाँ जी, please, you were saying something. या गुरनूर, जैसे इस बार आपने कुछ बोला है ना, वो बहुत ही ज्यादा हार्ट टचिंग था. मतलब आपने कुछ चीजें बोली जो कि मैं उसमें ऐड करना चाहूंगी. जैसे आपने बोला कि अर्बन एरियाज में भी बोला जाता है कि तुम पढ़ के क्या करोगी, क्योंकि तुम्हारी मैरिज हो जाएगी और मैरिज होने के बाद तुम किसी और पे डिपेंडेंट हो जाओगी. ठीक है, तो उसके बाद तुम्हें 10 रुपए भी मांगने तो तुम्हें हाथ फैलाना पड़ेगा अपने हस्बैंड के लिए. ठीक है, फिर बच्चा होने के बाद तुम्हारी जिंदगी कब जी, 18 ईयर्स ओल्ड तक आप, जैसे कि बिल्कुल सही बोला है. मैंने सिटीज में भी देखा है, सिटीज में बहुत ज्यादा सेफ्टी रखा जाता, सेफ्टी नहीं कह सकते बट स्ट्रिक्टनेस रखा जाता है पेरेंट्स के थ्रू, बहुत ही ज्यादा. ठीक है, हम लोगों को लगता है कि सिटीज में वो लोग ओपनली रहते हैं, सिर्फ कपड़े से एक फ्रीडम नहीं मिल जाती है कि वो लोग सलवार सूट पहन के जींस पहन सकते तो फ्रीडम है. नहीं, उनकी अलग ही प्रॉब्लम्स रहती है, उनको अलग ही चीजें. अब जैसे मैं यहाँ रहती हूँ तो मेरी अलग प्रॉब्लम्स होगी, आपको अलग प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती होगी सिटीज में. इवन इतने एजुकेटेड फैमिली के बीच रहते हुए भी आपको फेस करना पड़ता होगा. इवन आपने जैसे बोला कि डिपेंडिंग, एक स्टोरी में इससे रिलेटेड, बिल्कुल इससे रिलेटेड स्टोरी है जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी. 2 स्टोरी है. जैसे आपने बोला कि एक तो साइकिल हमें ब्रेक करनी पड़ेगी, बी अ चेंज मेकर. आपने देखा होगा कि अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना वायरस वगैरह में, एक छोटी सी एक पिक्चर काफी टाइम में मतलब ऐसा वायरल हुई थी, कुछ लोग स्टेटस पे भी लगाए रखते थे कि जैसे मैच बॉक्स होता है ना, माचिस, तो उसमें क्या होता है कि वो ऐसे लाइन में खड़ी हुई है और एक तरफ से आग लगना स्टार्ट हो गई है, तो वो आग लगते लगते आ रही है. तो एक माचिस ने क्या किया, जो एक थी, उसने वो नीचे गिर गई. ठीक है, बीच से. और फिर क्या हुआ कि वो आग मतलब ऐसे हो गया उनका. पहले ऐसा था, एक जब उनसे निकल गई ना तो ऐसे हो गया, उस अकेले ने अपना बलिदान देके बाकी सब को बचा लिया, अदरवाइज आगे भी आग लग जाती. अब जैसे आपने बोला, क्योंकि बिल्कुल सही होता है, पुरुष प्रधान समाज लगभग सिटीज में भी देखने को मिलता है और विलेजेस में भी देखने को मिलता है. तो क्या रहता है कि जैसे हमारी मोम मदर की बात कर लो, उन लोगों को हमेशा, अब हमारी नानी भी यही सिखाती आई है कि हाँ, पुरुष प्रधान समाज है, उन्होंने भी हमेशा नाना की बात मानी थी, तो मम्मी भी हमेशा से पापा की बात मानती आई है. ठीक है, तो जब भैया बड़ा हो जाता है तो भैया की बात मानो. आपको कहीं भी जाना है तो आपको पापा की परमिशन ज्यादा जरूरी है, मम्मी से पूछो मत पूछो, मैटर ही नहीं करता है. ठीक है, मतलब वो सिर्फ और सिर्फ खाना बनाने के लिए एक परमानेंट सर्वेंट है सिर्फ. ठीक है, एक परमानेंट सर्वेंट है 24 आवर के लिए, जो कि कोई सैलरी भी नहीं लेती है. और इवन सोचो, वो अपने लिए पूरे महीने में से 5,000 रुपए भी नहीं लेती कि लाओ मुझे पैसे तो मुझे शॉपिंग करके आना है. नहीं, कुछ नहीं. इवन एक साल में शायद 1,000 रुपए का सूट या कुछ लेके आती होगी ड्रेस, अदरवाइज नहीं लेके आती है कभी भी. और अदरवाइज भी कोई मेड आप लेके आओ अपने होम में और उसको 1 महीने सैलरी नहीं दोगे तो छोड़ के चली जाएगी. इवन उसको एडवांस अलग चाहिए, उसको दिवाली का बोनस अलग चाहिए, उसको सब चीजें अलग चाहिए. और ये बहुत बड़ी चीज है. पेरेंट्स
या सो पेरेंट्स ये सारी चीजें हो कर रहे हैं, मम्मी जो देखते आ रही है वही हम लोगों को सिखाती है कि तुम लोग भी ऐसे करो, ठीक है, तुम्हें भी अपने पेरेंट्स की पापा की माननी है, भैया की माननी है, मेरी मानो मत मानो, मुझे पता हो चाहे ना हो तुम क्या कर रही हो, बट तुम्हारे पापा से परमिशन लेना सबसे ज्यादा जरूरी है। 50% का हक कहाँ गया, ठीक है, तो कुछ नहीं रहता, हम लोगों को साइकिल ब्रेक करना ही पड़ेगा, तभी हम लोग अपने फ्यूचर में अपनी बच्चियों को अच्छी परवरिश दे सकते हैं और उनको कुछ अच्छा सिखा सकते हैं कि वो हमारी तरह एक सर्वेंट की तरह ट्रीट ना की जाए और वो एक अच्छे तरीके से रहे। दूसरी बात आपने बोला कि एक माइंडसेट बना दिया जाता है कि आप कितना भी पढ़ लो, विलेजेस में भी यही है कि कितना भी पढ़ लो, धोनी तो जूठे बर्तन ही है ना दूसरे घर जाके, हाँ ठीक जी। है, उसको इंग्लिश में कुछ और बोल देते होंगे आपके सिटीज में, लेकिन विलेजेस में उसको इस तरीके से बोला जाता है। तो एक छोटी सी मैं स्टोरी बताना चाहूंगी। एक बार क्या होता है, क्लासरूम होती है, तो कुछ बच्चे होते हैं जिनको क्लासरूम में नींद आ जाती है, कुछ बोरिंग लेक्चर चल रहे हो या कुछ बोरिंग टीचर हो, तो एक टीचर समझा रहे थे एक सम, उन्होंने व्हाइट बोर्ड पे लिख दिया मार्कर से, और उन्होंने बोला कि छुट्टी का टाइम लगभग हो रहा था, कहते ये सम आप लोगों को करके आना है कल, ठीक है। वैसे मुझे लगता है कि आप लोगों से होगा नहीं, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट सम है, अपनी पूरी बुक का सबसे डिफिकल्ट सम है ये, ठीक है। आप लोगों से सोल्व वैसे होगा नहीं, बट ट्राई कर लेना, नहीं सोल्व होगा तो कोई बात नहीं, मैं करवा दूंगा जैसे भी कल आके, ठीक है, वैसे बहुत डिफिकल्ट है, होगा नहीं, ये बात बोली उन्होंने। तो सबके, और वो एक बच्चा था जो कि सोया हुआ था उस टाइम, राइट। ठीक है, वो लास्ट बेंच पे बैठ के नींद मार रहा था, और जब उसको पता चला कि सर इतना बोल, मतलब सर बोल के निकल गए हैं, और उसने जैसे उसकी आंख खुली, तब उसको पता चला कि व्हाइट बोर्ड पे एक सम लिखा हुआ है और नीचे लिख रखा है भी कल करके आना है, ये होमवर्क है, ठीक राइट। है। तो उसने वो सम अपना नोट किया और वो चला गया, उसने वो बातें नहीं सुनी जो सर ने बोली कि डिफिकल्ट है, आप लोगों से होगा नहीं। नेक्स्ट डे क्या हुआ, क्लासरूम में जब सर ने पूछा कि किसी ने ट्राई किया, तो वैसे किसी ने किया नहीं होगा, ये बोल के सर समझाने के लिए लगे, तो एक बच्चे ने हाथ उठाया जो कि सोया हुआ था, सर मेरा हो गया, और उसका सम ठीक भी था, जबकि ओके। पूरी क्लास में जो कि इंटेलिजेंट बच्चे थे, टॉपर बच्चे थे, उन्होंने नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उनके पहले ही माइंड में बैठा दिया गया था कि ये बहुत डिफिकल्ट समय तुम लोगों से नहीं होगा और कल मैं ही आके समझा दूंगा। लेकिन वो बच्चा उस टाइम सो रहा था, उसे नहीं पता था कि सर ने क्या बोला है, उसको राइट। बस ये पता था कि ये होमवर्क है और मुझे कंप्लीट करना है। उसने अपना काम कंप्लीट करके आया, उसको ये था कि नहीं कंप्लीट करूंगा तो मेरे को पनिशमेंट मिलेगी। सो ये चीज है गुरनूर, जब तक हम लोगों के माइंड में ये बैठा दिया जाएगा ना कि ये चीजें है, ये आप लोगों की दुनिया सिर्फ इतनी ही है, और तो बहुत, और सीरियसली बहुत चीजें देखने को मिलती है, गर्ल्स को बहुत बड़ा चीजें झेलनी पड़ती है, स्टार्टिंग से के लेके लास्ट तक वो दूसरों के लिए जीती है, सिर्फ और सिर्फ दूसरों के लिए। पहले अपने पेरेंट्स के लिए जिएगी, फिर अपने पति के लिए जिएगी, फिर उसके अपने बाद अपने बच्चों के लिए जिएगी, उसकी जिंदगी बिल्कुल खत्म है। हर बार उसको सेक्रीफाइस करना पड़ता है, हर बार उसे ही सोचना पड़ता है कि मैं ये नहीं करूंगी तो मेरे पति क्या करेंगे, मेरे बच्चों को तकलीफ होएगी, वो मतलब इतना बड़ा, और इतना मतलब मैं सोच नहीं, एक लेडी को समझ नहीं सकता कोई भी कि वो है क्या, उसको इस तरीके से बनाया कैसे गया, सीरियसली। यस, यू डेफिनेटली। कैन कंटिन्यू गुरनूर, दैट्स इट जैसे आपने बोला, फ्रॉम माय the last situation like you gave about the matchsticks one, or about the children जो सो रहे थे क्लास में वो कर पाए, like you mentioned, ये बहुत ही important एक example है of real life occurrence, how we see जो हमको बताया जाता है, it's through socialization, it's a social process जिसमें आप अपने स्कूल के थ्रू, अपने पेरेंट्स, all of these factors of socialization आपको कुछ सिखाता है। And patriarchy is based on the notion of brainwashing. ये मेरा मानना है, I firmly believe in this. Patriarchy जो male dominant society है, it functions only on the basis of this. आपको कुछ या सिखाया जाता है, you're forced to believe something, then you start believing it. You never unlearn this. और childhood, like अभी मैम I believe 18 years की हैं, I'm still 16 years of age, I'm turning 17 in the next 2 months. What I can realize is that childhood is the most important phase where you learn things. और उस cycle में अगर हम, मैम, especially मैम, she's a very great personality, especially मैम, अगर उसको तोड़ पाएंगे, then all of you can do it too. It's very complicated, but it's also possible. And that is what change making is all about.
and ma'am could do it, and all of us, and even I could do it to a certain extent. So ये vicious cycle से टूटना ही unlearning और relearning का एक नाम है, एक process है जो बहुत important है. I believe जो viewers होंगे हमारे YouTube series के, they all want to understand what exactly is the process that goes into change making. What are the intricacies of change making? जैसे आप हम कहते हैं कि जैसे मैं थी when I was around, I actually began during the 7th year of my life. तो जब मैं 7 से 8 साल की थी तब मैंने शुरू किया था कुछ करना, अपने कुछ डोनेशन कर दिया, ऐसा कुछ करना शुरू किया था मैंने. What I saw was the most difficult thing in the world is to change a person's mindset. और social activism सिर्फ इस पे ही करता है rely. Changing people's perspective. How can one change it for the viewers? Okay, so your question is ki how can we be a change maker? Yes, how can we change people's perspectives? Your question is कि हम चेंज मेकर कैसे बन सकते हैं and others माइंडसेट कैसे चेंज कर सकते हैं? मैम, चेंज मेकिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है लोगों के माइंडसेट को चेंज करना. लोग जो उनको पता है उसको बदलना कि ये नहीं आप ये कर सकते हो, लेबर नहीं आप एजुकेशन पा सकते हो. सो हाउ डू यू चेंज दैट माइंडसेट? ओके, या सो सबसे पहले गुरनूर, एक चीज को हम लोगों को हमेशा ध्यान रखना होगा कि जब भी आप किसी को आपको मान लो कि किसी को कुछ चीज समझानी है, किसी आपको कोई टास्क दिया गया है, किसी पर्सन को कुछ भी चीज समझाने के लिए, वो इवन नहीं जानता उस चीज के बारे में, तो पहले आपको उस पर्सन के बारे में पता लगाना होगा. राइट, ठीक है? क्यों ऐसा नहीं है कि आप अपना आप खुद बस 2 मिनट की मैं तो अभी ये कर दूंगा, ओवर कॉन्फिडेंस में जाके उसके बंदे के सामने खड़े हो गए और मैं तो समझा लूंगा, मैं तो कन्विंस कर दूंगा. क्योंकि कन्विंसिंग पावर हर किसी के पास नहीं होती है. ओके, हर किसी के पास कन्विंसिंग पावर हाई नहीं होती है, बहुत लो होती है. लोग कन्विंस नहीं होते इजीली. बस आप लोगों को उसके बारे में पहले जानना पड़ेगा. उसके बाद आप लोगों को जान के ये बताना होगा कि पहले ये पता करना होगा कि उसका इंटरेस्ट किस चीज में है, उस पर्सन का इंटरेस्ट किस चीज में है. ठीक है? तो उसके बाद आपको वो करना होगा. अभी फॉर एग्जांपल मेरे को पता है, ठीक है, अब मान लो कोई अल्कोहल लेता है, ठीक है, तो हमें उसको अल्कोहल से छुटकारा दिलवाना है. ठीक है? तो उसके बाद में मान लो मुझे उसको जूस की तरफ कन्वर्ट करना है कि अल्कोहल लेने की बजाय आप जूस पीजिए, ठीक है, डेली. लेकिन जबकि ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा चेंज है ये, अल्कोहल छुड़वा के जूस पिलाना. लेकिन आप ऐसे इजीली किसी के पास ऐसे तुरंत जाके बोलोगे कि अल्कोहल की बोतल आप पकड़ के और रोड पे फेंक दोगे और जूस उसके हाथ में पकड़ा दोगे तो वो पकड़ के पीटेगा आपको. ठीक है? लेकिन एक तरीका होता है. आप जाइए, उसके बाद आप उसको पता कीजिए, उसको उस तरीके से बोलिए कि ये जो आप जूस उसको दे रहे हो उसको उस तरीके से बताइए कि ये भी एक प्रकार का अल्कोहल है और ये सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव है और आपके बॉडी के लिए बेनिफिट देगा, ये बेनिफिशियल है और इसमें ये एक अलग टाइप का बना हुआ है, ये बहुत ही बड़े बड़े लोग पीते हैं. ठीक है? तो मेरे को लगता है आपकी पर्सनैलिटी को देख के कि आप भी कोई बड़े लोगों में से कम नहीं है. ठीक है? तो आप भी इस जूस को इस जूस मत बोलो, उसको एक अलग नाम दो ताकि वो नाम ले भी ना पाए. ठीक है? इस तरीके का नाम दो और एक अलग बोतल वगैरह पैकिंग वगैरह में उसको दो. बोलो कि ये आप ट्राई करोगे ना तो आपकी लाइफ सच में चेंज हो जाएगी और आप भी उनकी तरह दिखोगे. देन वो उस चीज के बारे में सोचेगा और उसके बारे में वो कहेगा कि वैसे तो एक्सपेंसिव आती है लेकिन आपके साथ मेरी अच्छी बॉन्डिंग है, आप मुझे बोलो तो मैं आपको थोड़ा ठीक रेट में ला के देता रहूंगा. ठीक है? तो यदि आपको टास्क मिले कि आप किसी का 1 हफ्ता आप उसके अल्कोहल छुड़वा के आप जूस पिला सकते हो तो ऐसे पिला सकते हो आप. और मैं कर सकती हूँ ये काम, जो कि बिल्कुल डे नाइट ड्रिंक करता है उसको भी इवन मैं ये काम करवा सकती हूँ. उसको उसमें भी नशा होगा, उसमें नशा होगा. जब उसको पता चलेगा ये भी अल्कोहल है तो उसको नशा होगा उस चीज में, क्योंकि माइंड में हो गया ना. और एक बिल्कुल मैंने कल परसों एक बात पढ़ी थी बुक में कि आपका माइंड बहुत स्ट्रोंग है. आपने सोच लिया ना, आपको कोई बीमारी नहीं है लेकिन आपने सोच लिया कि मेरे को हार्ट अटैक होना चाहिए. ठीक है? आपने डे से लेके इवनिंग तक सोच लिया कि मेरे को हार्ट अटैक होना चाहिए, ऐसा हार्ट अटैक होना चाहिए कि हार्ट अटैक भी हो जाए बट मैं मरूं भी ना. तो आपको हो सकता है, आपको अटैक होगा
आप मरोगे नहीं, आप 1-2 दिन एडमिट होगे, देन आप वापिस आ जाओगे। माइंड इतना पावरफुल है, आपसे कुछ भी करवा सकता है। आपने ये लाइन सुनी होगी हर जगह कि जैसे कि आपने मूवीज वगैरह में सुना होगा कि इस पर्सन को हम बचा तो सकते, हम इस पर्सन को नहीं बचा सकते, इस पेशेंट को, क्योंकि खुद बचना नहीं चाहता है। इसकी खुद की विल पावर मर चुकी है। ऐसी कोई चीज नहीं है, ऐसी कोई चीज जिसके सामने ले आओ या कुछ ऐसा लेके आओ जो जो इसकी जगा सकता हो। तो सीन दिखाया जाता है कि उसकी वाइफ हो या वो सबसे ज्यादा जिससे प्यार करता हो, उस पर्सन को उसके सामने लेके जाया जाता है और उसके बाद उसकी इच्छा शक्ति जगाई जाती है। एक मूवी आपने सुना होगा, छिछोरे मूवी है, ठीक है, आपने देखा भी होगा, मूवी देखी थी आपने? I haven't seen it though, but I've heard the name. ओके, उसमें उसका बेटा क्या होता है, वो उसके पापा भी बहुत बड़ा इंजीनियर होता है, उसकी मम्मी भी बहुत बड़ी जॉब करती है कहीं, उनका डाइवोर्स हो चुका होता है वैसे, लेकिन क्या होता है कि उसका आईआईटी का रिजल्ट आने वाला होता है और उसका सेकंड अटेम्प्ट होता है मे बी। तो उसके बाद उसको ये उसके पापा ने बोल दिया कि बेटा यदि तुम विनर, मतलब तुम यदि पास कर जाते हो ना तभी हम पार्टी करेंगे, और फेल हो जाओगे तो पार्टी नहीं करेंगे। मतलब एक ऐसा टाइप का माइंडसेट बना दिया कि तुम पास होने ही चाहिए। कोई भी रिश्तेदार फोन करके पूछ रहे हैं कि हाँ पास होना चाहिए, अब की बार फेल नहीं सुनेंगे हम। और रिलेटिव्स भी बहुत तड़का डालने में मजा आता है उनको, जब भी रिजल्ट आता है सारे फोन करके पूछेंगे कि रिजल्ट कैसा रहा, और अच्छा नहीं रहता तो ओहो बहुत अफसोस की बात है। जबकि ऐसा नहीं है कि वो लोग आपकी स्टडी में हेल्प करवाया हो, कभी पूछा हो कि कभी किसी हेल्प की जरूरत हो तो बताना, ठीक है, कभी भी कॉल करना, हम तुम्हारे ही हैं, कभी नहीं बोलते हैं। लेकिन जब परेशानी होती है तो सबसे ज्यादा टोकने धोकने के लिए आ जाते हैं। Of course. उस मूवी में क्या था, उसने पता नहीं कितने फ्लोर से उसने छलांग लगा के, जब उसका रिजल्ट आया वो फेल हो गया था, और उसने छलांग लगा के और नीचे वो गिर गया। वो मरा नहीं था, वो कोमा में चला गया था। डॉक्टर ने बोला कि यदि इसको कुछ दिनों में होश नहीं आएगा तो ये हमेशा के लिए कोमा में चला जाएगा, ये कभी भी नहीं उठेगा, क्योंकि इसके खुद का जो अंदर से है ना वो मर चुका है, और ये चाहता नहीं है जीवित होना। तब उसके पापा को रियलाइज हुआ कि मतलब इसको ऐसा लगता है कि मैं कभी फेल नहीं हुआ। उसको लगता था कि उसके पापा कभी फेल नहीं हुए, बहुत बड़े इंजीनियर है, उसकी मम्मी कभी फेल नहीं हुई, वो भी बहुत बड़ी जॉब पे, मैं फेल हो गया, मैं सबसे इनका डम बच्चा हूँ। तब उसके पापा ने अपने कॉलेज के कुछ फ्रेंड्स को बुलाया और उन्होंने पूरी स्टोरी बताई कि हम लोग कितने फेल हुए हैं, कितनी बार फेल हुए हैं, फेल हो के हमारा तो नाम भी फेलियर का ग्रुप बना दिया गया था, उसके बाद जाके हम पास हुए। तो इतना पूरा स्टोरी उसमें छिछोरे मूवी में दिखाया जाता है। और एट द एंड जब वो पूरा फेलियर का पूरा वो दिखाते हैं कि फेल हो के इतनी बार फेल हो के हम लोग, ऐसा ना, फेलियर इज द फ्यूल फॉर फायर, ठीक है, या, और फेलियर इज द लेडर ऑफ सक्सेस। ये दो चीजें बहुत ही ज्यादा सुनी जाती है और बहुत ही ज्यादा एक मोटिवेशन भी देती है एक अपने आप में। देन उसको होश आया और उसने फिर से अटेम्प्ट दिया, तो उसको जो भी कॉलेज मिला और उसने अपना स्टडी रन किया। तो वही चीज होती है कि हम इस चीज के लिए हम लोगों के खुद के अंदर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। Absolutely. Like you mentioned, I think like I mentioned, हम लोग technical कोई हम बात नहीं कर रहे, it's all based on experience, like ma'am is saying. However, एक बहुत ही interesting आपने बात सी बोली जो मैंने खुद देखी है, that it has to be your inner self. I've also seen plenty of failures in my entire life, and I don't think we talk enough about it. मैंने भी काफी देखा है some extremely traumatic experiences, and these actually are so traumatic that they pull you down. आप उनसे बाहर निकल ही नहीं पाते हो, but it is actually your inner self that can actually pull you out of it. तो बहुत interesting आपने इसको aspect दिया. But coming back to our main discussion about change making, to conclude this, I'll just add one thing जो मैं सोचती हूँ is the greatest change, is the greatest way we can make a change is through empathy. बहुत लोग कहते हैं, I've seen people, मैम मैं अपना बात बताती हूँ आपको, I've seen people जो menstrual activist होता है, worked with them as well. वो जाके बताते हैं ग्राउंड वर्क फील्ड में टू मेंस्ट्रुएटर्स एंड नॉन मेंस्ट्रुएटर्स एज वेल कि आप लोग ने जो सीखा है फॉर द पास्ट नंबर ऑफ इयर्स सब कुछ गलत है, एंड व्हाट वी आर सेइंग इज ट्रू। तो आप समझिए कि वो उनको ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशन के केज से निकाल के अपने मॉडर्न पर्सपेक्टिव के केज में डाल रहे हैं। वेयर इज फ्रीडम देयर, वेयर इज एम्पावरमेंट देयर? The only way you can actually impact somebody's mind is by meaning and saying, I understand.
मैं जानती हूँ कि आप कहाँ से आ रहे हो, and I respect you for what you did. That is the first step towards impacting a person's mind. अगर मैं चाहती हूँ कि मैं अंजू मैम को बदलूं, मुझे उनके मन में जाके देखना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है. What is the reason behind that? And I think in the past half year, I have learned the whole value of empathy. मतलब in my personal life too, I have started taking into account कि लोग ऐसा क्यों करते हैं, मैम ने ऐसा क्यों बोला, मैंने ऐसा क्यों रिएक्ट किया. And again, it's self-awareness, जो बहुत important है. People like ma'am, I will just not take more than 1 minute. Like I dealt with the case very recently about domestic violence again. Deal नहीं किया, देखा, witness किया, and I was shadowing a person who was dealing with the case primarily. मैंने वहाँ पे ये चीज सीखी कि अगर हम उन victim को बोलेंगे कि आपने क्यों रिपोर्ट नहीं किया, आपने क्यों सहा, that person will again feel bad, feel guilty, feel mental trauma. और हम उनको ये बोले कि you're not alone, we understand, we are here to support you. हम जानते हैं कि आपको सालों से बताया जाता है कि आप इसके ही हकदार हैं. You need to go through domestic violence. Your man is, your husband is the supreme power. So that is what empathy is. And that is how we could make a change. So like you said, I salute your efforts to make a change. आपने बहुत change लाया भी है. Let us break that vicious cycle. Let us make and bring about a very, very important change in society. Thank you so much, Anju ma'am. थैंक यू सो मच गुरनूर. सीरियसली आज का सेशन वंडरफुल था फ्रॉम माय साइड एंड योर साइड आल्सो. Definitely. It's a बहुत pleasure. मजा आया आज बात करके. Pleasure. Sorry. Please. ऐसा नहीं लग रहा था कि हम लोग स्क्रीन पे बात कर रहे हैं. ऐसा लग रहा था कि हम लोग एक ही घर में बैठ के आमने सामने बात कर रहे हैं और एक बहुत ही सीरियस मुद्दे के ऊपर डिस्कशन भी कर रहे हैं. Definitely. That's the beauty of it. थैंक यू सो मच एवरीवन. प्लीज गुरनूर को भी सपोर्ट कीजिए. इन्होंने बहुत कम एज में इतना सोच पा रहे हैं, क्योंकि जिस एज में अभी एक ना रहता है कि किसी को देख के भी आप खुद करके एक पैरों पे खड़े होकर दूसरों के बारे में सोचते हो. ये बहुत बड़ी चीज है सीखना. तो गुरनूर ने सीखा है अपने आस पड़ोस से, कुछ चीजें हमसे सीखी, कुछ चीजें खुद से सीखी, और उसका पूरा पैकेज बना के जब वो एक अलग पाबंदी लेके आई है कि बहुत सारी गर्ल्स की जो पाबंदी को ब्रेक करना है, ये जो कि बहुत सारे उनके ऊपर लगे हुए हैं कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, स्टार्टिंग से कर करके. तो प्लीज ऑल्सो सपोर्ट हर एंड उनके साथ खड़े रहिए. थैंक यू सो मच. एंड या गुरनूर, वी आर ऑल्सो विद यू. Definitely. I'm aware of that. Thank you. Thank you so much.